السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. اوکے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. تو ہم جو ہے لیسن نمبر 14 میں چل رہے تھے اور یہ ہمارا جو ہے پیج نمبر آج جو پڑھیں گے ہم انشاءاللہ آگے پڑھنا ہے انشاءاللہ. تو یہ پیج نمبر 95 96 بول کے آج پورا لیسن ختم کر دیں گے انشاءاللہ اللہ کے اذن سے انشاءاللہ. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا فعل امر کے اندر چل رہے تھے اور فعل امر کے اندر آج جو ہے ہم او اور ای لگا رہے تھے شروع میں. فعل امر کو بنانے کے وقت جب ہم فعل امر ماضی اور مضارع جب مضارع سے ہم ہے نا مضارع سے جب ہم فعل امر بنا رہے تھے تو او یا ای لگا رہے تھے ہم، ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو او اور ای لگا رہے اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ او ای جو کہہ رہے ہیں ہم اکتب اشرب ہے نا، اذهب اجلس ہے نا، اور اقتل. یہ جو او ای لگا رہے ہیں او یہ ای یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ حمزۃ الوصل ہے. اکثر لوگوں کو کیا ہے ڈاؤٹ رہتا ہے کہ یہ الف دیکھیے گا جب بھی عربی الفاظ جب ہم لکھتے ہیں تو کھڑی لکیر کی طرح جو ہے نا الف نظر آتا ہے ہمیں. جو کھڑی لکیر نظر آتی ہے تو وہ کھڑی لکیر ہر جگہ جو کھڑی لکیر ہوتی ہے وہ الف نہیں ہوتی ہے نا. الف جب لمبی آواز نکالیں گے تو وہ الف ہے. ہاں جی. الف اور حمزہ میں کیا پہچان ہے؟ حمزہ اور الف کے اندر پہچان یہ ہے، دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ جب ہم لمبی آواز کھینچیں گے جیسے خالد کتاب تو کتابو خالدن، جب ہم کہہ رہے کہ کتاب اور جب ہم کہہ رہے خالد تو کتاب تا کے بعد الف لمبا کھینچ رہے ہیں ہم نا، خالد خا کے بعد لمبا کھینچ رہے. تو وہ الفاظ جس میں لمبی آواز کھینچی جاتی ہے وہ الف ہے. وہ الفاظ جس میں آواز لمبی کھینچی جاتی ہے تو وہ کھڑی لکیر جو ہے نا الف ہے. ادروائز اگر لمبی آواز نہ کھینچی جائے اس میں تو وہ حمزہ ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ عربی میں اس کو حمزہ کہتے ہیں، الف نہیں کہتے اب. ٹھیک ہے. وہ کھڑی لکیر جو ہے نا وہ ابھی دیکھے گا اکتب ہم لکھ رہے کہ یہاں پر یہ دیکھے گا اکتب جب لکھ رہے شروع میں تو یہاں پر دیکھیے گا کھڑی لکیر ہے، یہاں پر کھڑی لکیر ہے شروع میں اکتب کے. تو یہ کھڑی لکیر الف نہیں ہے، کھڑی لکیر الف نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ ہے. یہ اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھیے گا جب ہم لمبی آواز کھینچیں گے تو وہ الف ہے، اگر ادروائز جو ہے نا وہ حمزہ ہے پھر، ہے نا. یہ فرق ہے دونوں میں، یہ فرق ہے دونوں میں. اچھا حمزۃ الوصل جو ہے نا اب یہ دیکھیں گے کہ دو ٹائپ کی حمزہ ہوتی ہے عربک میں، حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع. کتنے ٹائپ کی حمزہ ہوتی ہے عربک میں؟ ہاں جی کتنے ٹائپ کی حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع. ہاں دو ٹائپ کے. حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع. تو آپ کو حمزہ اور الف میں نے فرق سمجھا دیا ابھی کہ لمبی آواز کھینچیں گے تو وہ الف ہے، ادروائز وہ حمزہ ہے. اب حمزہ وصل اور حمزہ قطع ہے نا. تو یہ سمجھے کہ عربی میں 99.99 جو حمزہ ہے وہ حمزۃ القطع ہے. کیا ہے وہ؟ 99.99 یعنی جو نا بالکل چند الفاظ ایسے عربی میں جو کہ حمزۃ الوصل جو ہے نا اس کے اندر حمزۃ الوصل ہوتی ہے، ادروائز حمزۃ القطع ہوتی ہے. حمزۃ الوصل اور قطع میں فرق سمجھیں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. حمزۃ الوصل کو سمجھ لیتے ہیں، صرف ہم حمزۃ الوصل کو سمجھ لیتے ہیں ہم. تو میں نے یہ کہا کہ عربی زبان میں میں نے ابھی پہ ایک بات یہ بتائی کہ ہے نا حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع دو ٹائپ کی حمزہ ہوتی ہے عربک میں. تو ایک حمزۃ الوصل کہتے ہیں اور ایک حمزۃ القطع. لیکن عربی میں زیادہ تر 99% جو ہے نا حمزۃ القطع ہی ہوتی ہے. حمزۃ الوصل بہت کم ہے، چند الفاظ ہیں ان کے اندر حمزۃ الوصل استعمال ہوتی ہے. ان میں سے جو ہے نا فعل امر ہے جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں ابھی اکتب اقرا اشرب اجلس افہم. یہ جو ہے نا شروع میں جو لمبی لکیر ہے یہ جو کھڑی لکیر ہے سب جگہ فعل امر میں یہ حمزۃ الوصل ہے. ہاں جی. اکتب اجلس افہم
इशरब इकरा, शुरू में जो लकीरें खड़ी लकीरें आ रही हैं, हर फेले अम्र जो है ना शुरू हो रहा है एक खड़ी लकीर से, तो ये खड़ी लकीर क्या है? हमजतुल वस्ल है। ये क्या है? ये क्या है? ये हमज़तुल वस्ल है। हमजतुल वस्ल है। अब हमजतुल वस्ल को थोड़ा सा समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं हम। मैंने चाहा कि आपको अलिफ और हमजा में फर्क बता दूं, क्योंकि अक्सर लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अलिफ और हमजा में फर्क नहीं कर पाते। तो आप लोगों को हमजा और अलिफ में फर्क समझ में आ गया क्या आप लोगों को? अभी ये बताइएगा मुझे, अलिफ और हमजा में फर्क समझ में आ गया? कैसा पहचानेंगे किसको अलिफ कहेंगे, किसको हमजा कहेंगे हम? सर जो हमजा होगी उसके ऊपर हमजा की अलामत होगी। हाँ, बस इतना कहिए कि भाई जो है ना, जिसकी आवाज लंबी खींचते वो अलिफ है, अदरवाइज हमजा है। इतना ही कहना हमें। अलिफ और हमजा में फर्क, अलिफ और हमजा में फर्क बताना हो अगर हमें, अगर आपसे कोई पूछ ले कि अलिफ और हमजा में क्या फर्क होता है, अगर आपसे पूछ ले कि भाई आप लोग मदीना जो है ना दुरूसुल लुगात अरबिया बुक 2 पढ़ रहे हैं, अलिफ और हमजा में फर्क बता दीजिए जरा, तो आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि भाई क्या बताऊं मैं फर्क, अलिफ और हमजा में क्या फर्क बताना आपने। तो अलिफ और हमजा में फर्क ये है। किताबुन में अलिफ है और उक्तुब में हमजा है। हाँ, नहीं, तो अलिफ और हमजा में फर्क ये है कि जो लंबी आवाज खींची जाती है वो अलिफ होती है। जिसकी आवाज लंबी खींची जाती है, किताब ता के बाद अलिफ है, तो ये अलिफ है, ये है ना। खालिद, तो जहां पर भी आवाज लंबी खींची जा रही है वो अलिफ है, और जहां पर आवाज लंबी नहीं खींची जाती तो वो हमजा होती है लिखने में हमेशा, है ना। याद रखिएगा, अलिफ और हमजा में मैंने जो फर्क बताया उसको कोई रिपीट करके बताया तो फिर मैं हमजतुल वस्ल को समझा देता हूँ कैसे इस्तेमाल करेंगे हम। अलिफ जो और हमजा लंबी का फर्क खींची बताएंगे। जो लंबी खींची जाती है वो अलिफ है, आवाज, और जो जी, नहीं जब हम उस लफ्ज को पढ़ते हैं अपनी जुबान से ऊंची आवाज में, जब हम खींच रहे हैं तो उसकी आवाज को लंबा खींच रहे हैं हम। किताब, खालिद, कुरान, हम लंबा खींच रहे हैं उसकी आवाज को। तो ये जो है ना, जब आवाज को लंबा किया जाए, है ना, तो वो अलिफ होता है, वो हमजा नहीं है, फिर वो अलिफ होता है। और जहां पर अलिफ, जहां पर लकीर तो खड़ी हो लेकिन आवाज लंबी ना हो उसकी, तो वो अलिफ नहीं है बल्कि वो हमजा है वो। और वो हमजा कताई भी हो सकती है, हमजा वस्ली भी, हमजातुल वस्ल भी हो सकती है वो, और हमजातुल कता भी हो सकती है। और मैंने अभी बताया कि अरबिक में 99.99% जो है ना हमजातुल कता ही होती है, हमजातुल कता होती है। चंद अल्फाज ऐसे हैं, चंद जगह चंद अल्फाज ऐसे हैं जहाँ पर हमजातुल वस्ल होती है, अदरवाइज हमजातुल कता है ना, हमजातुल कता। हमजातुल वस्ल को पढ़ने का तरीका समझिए। हमजातुल, जैसे कि हम पे कह रहे हैं कि उक्तुब, उक्तुब, हम क्या कह रहे हैं? उक्तुब। तो ये जो खड़ी लकीर है ये क्या है? ये अब आप बताइए मुझे कि उक्तुब हम कह रहे हैं, आज खड़ी लकीर है कि नहीं? उक्तुब, जब उक्तुब शुरू हो रही है खड़ी लकीर से, उक्तुब जो लफ्ज है शुरू हो रहा है खड़ी लकीर से, तो ये खड़ी लकीर अलिफ है कि हमजा है? ये हमजा है। हमज़तुल वस्ल है। हमजा है। हमज़तुल हमजा वस्ल है। क्यों हमजा है? अलिफ क्यों नहीं है? इसे खींच नहीं रहे हैं। हम इसकी आवाज को खींच नहीं रहे हैं, इसकी आवाज को हम खींच नहीं रहे बीच में आएगा। हाँ, बीच में हमजा, अलिफ जो है ना शुरू में, बीच में आएगा बेचा। और उसकी दूसरी पहचान, मोटी पहचान ये है कि उसकी आवाज लंबी निकलेगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, जमीन से आसमान की तरफ। अलिफ की आवाज किधर से किधर जाएगी? जमीन से आसमान की तरफ चलती है लंबी इसकी जाएगी आवाज। किताब, जी, आवाज जो है ना नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, वो अलिफ है, वो अलिफ है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ आवाज नहीं चले तो वो अलिफ नहीं है फिर, भले ही अलिफ की तरफ नजर आए वो, भले ही वो अलिफ की तरफ नजर आए, वो क्या है? वो अलिफ नहीं बल्कि हमजा है। हाँ जी, हाँ जी, फर्क समझ में आ गया? चलिएगा, तो अब हमजतुल वस्ल को पढ़ने का तरीका समझ लीजिए 2 मिनट में और आगे बढ़ते हैं। हमजतुल वस्ल को जरा जब हम शुरू में इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखिएगा हमजतुल वस्ल शुरू में है, हमजतुल वस्ल शुरू में है तो हम कहेंगे उक्तुब। हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम? उक्तुब, ऊ कहेंगे हम, ऊ कहेंगे जी। लेकिन इसी हमजतुल वस्ल के पहले अगर कोई हर्फ आ जाए या कोई लफ्ज आ जाए तो लिखने में तो मौजूद होगा, ये हमजतुल वस्ल जो है लिखने में तो मौजूद होगा, लेकिन आवाज गायब हो जाएगी इसकी। मसलन हमने कहा कि भी उक्तुब को इस्तेमाल किए जुमले, हमने कहा कि या हामिदु, या हामिदुक्तुब। अब ये देखिएगा हमजतुल वस्ल लिखने में मौजूद है, आवाज गायब होगी इसकी। हमजतुल वस्ल की पहचान, हमजतुल वस्ल को पढ़ने का तरीका देखिएगा।
हमज़तुल वस्ल को पढ़ने का तरीका कैसा है? हमज़तुल वस्ल से पहले ये देखिएगा हमज़तुल वस्ल है यहाँ पर उक्तुब, यहाँ देखिएगा उक्तुब, ये हमज़तुल वस्ल है। फेले अम्र के शुरू में जो खड़ी लकीर आ रही है वो हमज़तुल वस्ल है, तो उक्तुब के अंदर जो खड़ी लकीर है वो हमज़तुल वस्ल है। अब हमज़तुल वस्ल को पढ़ने का तरीका सीख रहे हैं हम कि इस हमज़तुल वस्ल के पहले कोई लफ्ज आ जाए या कोई हर्फ आ जाए तो इसकी आवाज जो है ना गायब हो जाती है। इस हमज़तुल वस्ल की आवाज गायब हो जाती है। लिखने में तो मौजूद है, लेकिन आवाज गायब है इसकी। मसलन हम इसको पढ़ेंगे, अब हम या हामिदुक्तुब, क्या पढ़ेंगे हम? या हामिदुक या हामिदुक्तुब। अब देखिएगा ऊ की आवाज को गायब कर दिया हमने। हमज़तुल वस्ल की आवाज जो कि शुरू में कह रहे थे हम उक्तुब, हम कह रहे थे शुरू में उक्तुब, ये हमज़तुल वस्ल है। जितने भी फेले अम्र के शुरू में जितने भी खड़ी लकीर आ रही है सब हमज़तुल वस्ल है। क्या कहा मैंने? बोलिए, मैंने क्या कहा, रिपीट करके बताइए। पहले अम्र के शुरू में जितने भी अलिफ आ रहे हैं वो सब हमज़तुल वस्ल हैं। हाँ, अलिफ नहीं कहिए, खड़ी लकीर बोलिए उसको, है ना, अलिफ बोलना ही नहीं हमने उसको। पहले अम्र के शुरू में जो खड़ी लकीर है वो हमज़तुल वस्ल है। अलिफ को तो हमने आउट ही कर दिया वहां से। अलिफ तो वो होता है जिसकी आवाज जमीन से आसमान की तरफ जाती है, ठीक है। तो चलिएगा, तो ये हमज़तुल वस्ल है। अब हम हमज़तुल वस्ल को पढ़ने का तरीका क्या है कि जिस यानी फेले अम्र जैसे उक्तुब हमने कहा, इसके पहले अगर कोई लफ्ज आ जाता है, जैसे कि हामिद लफ्ज आ गया या हामिदो एक लफ्ज आ गया पूरा, तो अब हम इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, उक्तुब और या हामिदो। तो हम इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे या हामिदो उक्तुब, हम इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे। अब हम या हामिदो उक्तुब नहीं पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे? दोनों को हमज़तुल वस्ल की आवाज को गायब कर देंगे। क्या करेंगे हम? हमज़तुल वस्ल की आवाज को गायब कर देंगे। लिखने में मौजूद होगा ये हमजा जो है ना, ये हमज़तुल वस्ल लिखने में मौजूद, देखिए मौजूद है यहाँ पर, आवाज गायब है। हमने कहा कि या हामिदुक्तुब, या हामिदुक्तुब, या हामिदुक्तुब, दाल को काफ में मिला दिया, उक्तुब नहीं कहेंगे, या हामिदुक। हाँ, अलिफ लिखने में मौजूद है, पढ़ने में मौजूद नहीं है, पढ़ने में गायब है ये। या हामिदुक, या हामिदुक्तुब, ठीक है। चलिएगा, जैसे कि कहा हमने इजलिस। अब इजलिस के शुरू में जो खड़ी लकीर है ये क्या है? ये इजलिस के शुरू में खड़ी लकीर क्या है? हमज़तुल वस्ल है। जितने भी फेले अम्र आ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं इस वक्त फेले अम्र, जो फेले अम्र हम पढ़ रहे हैं, फेले अम्र के शुरू में जो भी खड़ी लकीर है वो हमज़तुल वस्ल है। और हमज़तुल वस्ल के पहले अगर कोई हर्फ या लफ्ज आ जाए, हमज़तुल वस्ल की आवाज खत्म हो जाती है। लिखने में हमज़तुल वस्ल मौजूद होगा, हमजा मौजूद होगा लिखने में, लेकिन आवाज में गायब हो जाएगी उसकी आवाज। देखिएगा उदखुल, अब यहाँ पर उदखुल शुरू में कहा हमने उदखुल, तो यहाँ पर बराबर आवाज निकाली हमने उदखुल, लेकिन हमने जो है ना ये हमज़तुल वस्ल है। इजलिस, ये देखिएगा इजलिस, ये हमज़तुल वस्ल है, लेकिन इसके पहले वाव आ गए, कि नहीं? तो अब जब जो ना वो इजलिस नहीं कहेंगे हम इसको, वो इजलिस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे हम? आवाज को गायब, हम हमज़तुल वस्ल की आवाज को गायब कर देना है हमें। और लिखने में, लेकिन लिखना मौजूद होगा वहां पर, लिखने में जो है ना खड़ी लकीर लिखी जाएगी, लिखने में खड़ी लकीर मौजूद होगी, पढ़ने में और बोलने में आवाज खत्म हो जाएगी उसकी। हम कहेंगे उदखुल वजलिस, अंदर आओ और बैठ जाओ, उदखुल वजलिस। ये बात समझ में आ गई? देखिएगा इफ हम, एक मिसाल और समझ लेते हैं हम। इफ हम, देखिएगा हमज़तुल वस्ल है शुरू में, इफ हम शुरू में हमज़तुल वस्ल मौजूद है, लेकिन जो है ना अगर इससे पहले कोई लफ्ज आ जाए तो फिर ये हमज़तुल वस्ल की आवाज जो है ना गायब करके पढ़ेंगे। हम कहेंगे इफ़हम, समझो। अब इसको हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे क़ाल अली अबी इफ़हम, ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम इसको। हाँ जी, क़ाल अली अबी इफ़हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम। कैसा पढ़ेंगे हम? क़ाल अली अबी इफ़हम। कैसा पढ़ेंगे हम? क़ाल अली अबी इफ़हम, क़ाल अबी, या जी, क़ाल अली अबी इफ़हम। तो फेले अम्र के शुरू में जो खड़ी लकीर है वो हमज़तुल वस्ल है। एक बार बोलिए मेरे साथ में,
पहले अम्र के शुरू में जो खड़ी लकीर है वो हमज़तुल लकीर है वस्ल वो है। हमजतुल वस्ल है। वस्ल है जी। फेले अम्र के शुरू में जो खड़ी लकीर है, अलिफ नहीं बोलना हमने इसको, अलिफ को भी आउट कर दीजिए, खड़ी लकीर बोलिए सीधा। फेले अम्र के शुरू में जो खड़ी लकीर नजर आ रही है हमें, वो हमजतुल वस्ल है। और उसको पढ़ने का तरीका यह है कि हमजतुल वस्ल के पहले, हमजतुल वस्ल से पहले अगर कोई लफ्ज या हर्फ आता है तो हमजतुल वस्ल की आवाज को हम गायब कर देते हैं, है ना। तो ये रूल हमने पढ़ा हुआ है। या बुनय्या यरकब माना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था। अब फेल अमर राकिब यरकबू, राकिब यरकबू सवार होना, फेल अमर क्या आना चाहिए? हाँ जी, राकिब यरकबू से फेल अमर क्या आना चाहिए? इरकब इरकब इरकब, वेरी गुड, इरकब, वेरी गुड, इरकब, इरकब। लेकिन इरकब से पहले जो है ना कोई लफ्ज आ जाए तो क्या पढ़ेंगे हम? ये देखिएगा कुरान में एक लफ्ज है, कुरान के अंदर है, कुरान की आयत है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अपने बच्चे से, या बुनय्या यरकब, या बुनय्या यरकब माना, या बुनय्या यरकब। अब देखिएगा इरकब है असल में, वो तो राकिब यरकब उसे इरकब, लेकिन वहां से उसके इरकब से पहले जो है ना या बुनय्या आ गया। अब या बुनय्या और इरकब दोनों को मिलाकर पढ़ रहे हैं हम कुरान के अंदर, तो पढ़े या बुनय्या यरकब, या बुनय्या, या बुनय्या इरकब नहीं पढ़ रहे हम। तो ये लफ्ज किसने सुना है? इससे पहले ये आयत पढ़ी है आप लोगों ने? कभी सुनी है या पढ़ा है आपने? ये आयत कभी सुनी है या पढ़ी है आप लोगों ने कभी? या बुनय्या यरकब माना। हाँ जी, सर जी पढ़िए। पढ़िए सर। पढ़िए। पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अब ये रूल आपको पता चल गया, पता चल गया हमजतुल वस्ल का। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमजतुल वस्ल, मैंने ये कहा है कि हमजतुल वस्ल जो है ना अरबिक लैंग्वेज में हमजतुल वस्ल की मिकदार कितनी, हमजतुल वस्ल बहुत ज्यादा नहीं है। वो अल्फाज जिनके अंदर हमजतुल वस्ल इस्तेमाल हो वो बहुत ज्यादा नहीं है। 99.99% जो है ना हमजतुल कता ही होती है ना। चंद अल्फाज ऐसे हैं जिसमें हमजतुल वस्ल, जैसे कि फेले अम्र है, फेले अम्र के शुरू में जो कड़ी लकीर है वो हमजतुल वस्ल है। इसी तरह जो हम कहते हैं अल 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 किताब, अल कलम, अल मुदर्रिस, जो शुरू में अल लगा रहे हैं, तो लाम के पहले जो खड़ी लकीर है वो भी हमजतुल वस्ल है। हाँ जी, अल किताब अल कलम के अंदर जो खड़ी लकीर है लाम से पहले, वो भी हमजतुल वस्ल है। इसका मतलब ये है कि अल के पहले कोई भी अगर लफ्ज या हर्फ आ जाए तो ये जो है ना हमजतुल वस्ल की आवाज खत्म हो जाएगी। हाँ जी, तो दो जगह पर याद रखिएगा फिल वक्त, हमजतुल वस्ल जो है ना दो जगह पर याद रखिएगा। दो चार अल्फाज और है, मैं बाद में बता दूंगा वो। फिल वक्त दो अल्फाज ऐसे याद रखिए, दो चीजें ऐसी याद रखिए जो हमजतुल वस्ल हर रोज इस्तेमाल होती है। तो अल तो बहुत रोजाना इस्तेमाल करते हैं, अल किताब, अल कलम, अल मुदर्रिस, है ना, अल कुर्सी, तो हर जगह अल अल अल। तो ये अल के अंदर लाम से पहले जो खड़ी लकीर है वो हमजतुल वस्ल है। और हमजतुल वस्ल का तरीका आपको समझ में आ गया कि हमजतुल वस्ल का रूल ये है कि उसके पहले कोई लफ्ज या हर्फ आ जाए तो हमजा की आवाज को गायब कर देते हैं पढ़ते वक्त। ये बात समझ में आ गई? दो जगह जो है ना हमजतुल वस्ल याद रखिएगा। कौन सी दो जगह पे याद रखेंगे हमजतुल वस्ल हम? अल वाला में अल से पहले, अम्र में, अल के अंदर के पहले अम्र। जी, ये अल के अंदर जो खड़ी लकीर है वो भी हमजतुल वस्ल है। अल के अंदर जो खड़ी लकीर है वो भी हमजतुल वस्ल है, वो अलिफ नहीं है, वो अलिफ नहीं है। अलिफ का तरीका मैंने बता दिया, अलिफ की आवाज जो है ना जमीन से आसमान की तरफ जाती है, ये अलिफ नहीं है। ये अल के अंदर जो है ये हमजतुल वस्ल है। और फेल अम्र के शुरू में जो खड़ी लकीर है वो भी हमजतुल वस्ल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमजतुल वस्ल क्लियर है, इजी है, बताइएगा मुझे। जी सर, जी इजी सर। है। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है ना ये इसके पहले कंफ्यूजन था आप लोगों को बहुत सारा, अभी क्लियर हुआ कि आप लोगों को अलिफ और हमजा के अंदर? हाँ जी, जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। चलिए देखिएगा नंबर एक, ये कह रहे हैं कि हम जो है ना हमजतुल वस्ल के तरीके का इस्तेमाल करके पढ़ेंगे कुल व शरब। अब कुल व इशरब नहीं पढ़ेंगे हम, है ना, खाओ पियो, खाओ और पियो, खाओ पियो। तो खाओ पियो को हम अरबी में कुल व शरब, कुलू व शरबू जी। कुरान के अंदर इस्तेमाल होता है, जी कुलू व शरबू, है ना, कुलू व शरबू। तो अकला या कुलू से फेल अम्र कुल, अकला या कुलू से फेल अम्र क्या है? क्या है? कुल 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 है जी, कुल। और शरब यशरबू से इशरब, शरब यशरबू से इशरब इशरब, लेकिन इशरब, ये देखा शरब यशरबू से इशरब, लेकिन ये इशरब के पहले वाव आ जाए तो वह इशरब नहीं पढ़ेंगे, बशरब, क्योंकि वशरब पढ़ेंगे। ये हमजतुल, ये खड़ी जो लकीर है ये हमजतुल वस्ल है, आवाज गायब कर देंगे इसकी हम।
اس کی آواز غائب کر دیں گے. وہ اشرب نہیں وشرب وشرب کل وشرب کلو وشربو کلو وشربو. قرآن کے اندر کو آپ لوگوں نے کبھی پڑھا ہوا ہے کلو وشربو؟ ہاں جی जी सर. ہاں تو وہاں پر یہی رول ہے, وہاں پر یہی رول ہے. اشربو ہے اصل میں, کلو و اشربو کلو و اشربو ہے نا. تو اشرب اشربو یہ فعل امر ہے, اشرب اشربو اشربی اشربنا. لیکن اشرب سے پہلے واو آ گیا تو حمزۃ الوصل کی آواز کو غائب کر دیا ہم نے پڑھا کہ وشرب کل وشرب کھاؤ پیو کل وشرب. چلیے نمبر دو کو پڑھ کے بتائیے. چلیے آپ ہی لوگ پڑھ کے بتائیے مجھے. اقرأ الدرس آج کس نے پڑھا तो پہلے؟ अब हम نمبر 2 کا نمبر 2 کا اقرأ الدرس ہاں اب ہم اس کو اقرأ الدرس پڑھیں گے. اب ہم پڑھیں گے اقرأ. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اقرأ. اور آگے الدرس الف لام کے ساتھ میں لفظ ہے الدرس ہے نا. تو اقرأ الدرس نہیں پڑھیں گے, اقرأ الدرس نہیں پڑھیں گے, ہم پڑھیں گے اقرأ الدرس ہے نا. اقرأ الدرس یہ جو سکون ہے, یہ جو سکون ہے حمزہ کے اوپر, اس کو کسرہ زیر میں بدل دیں گے. اقرا کے یہ دیکھیے گا اقرا اقرا حمزہ کے اوپر سکون ہے, حمزہ کے اوپر سکون ہے. تو اس سکون کو زیر میں بدل دیں گے ہم, اس سکون کو زیر میں بدل دیں گے. ہم پڑھیں گے اقرأ الدرس. کیسا پڑھیں گے ہم اس کو؟ کیسا پڑھیں گے ہم اس کو؟ اقرأ الدرس. اور اس کو کیسا پڑھیں گے ہم؟ اس کو کیسا پڑھیں گے ہم؟ فہم یفہم سے افہم, فہم یفہم سے افہم. افہم اور واو پہلے آ گیا, اگر حرف آ گیا افہم سے پہلے تو وہ افہم نہیں, پھر اب وفہم. حمزۃ الوصل کی آواز کو غائب کر دیں گے فوراً, فوراً حمزۃ الوصل کی آواز کو غائب کر دیں گے. وفہم وفہم ذرا بھی برداشت نہیں کریں گے اس کو ہم. وفہم لکھنے میں بھلے موجود ہے وہ, لکھنے میں بھلے موجود ہے وہ, لیکن ہم پڑھیں گے نہیں اس کو, وفہم پڑھیں گے سیدھا. حمزۃ الوصل کو جو ہے نا آواز کو جو ہے نا غائب کر دیتے ہیں, اس کے پہلے کوئی حرف یا لفظ آ جاتے ہو. یہ رول میں سمجھتا ہوں کہ دماغ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. بتائیے گا آ گیا سمجھ میں؟ जी सर. الحمدللہ آگے. الحمدللہ. اس تیسرے جملے کو پڑھ کے دکھائیے آپ مجھے. इक़रा نہیں اب یہاں پر اقرا, اب یہاں پر اقرا نہیں کہیں گے, اقرا کہیں گے سیدھا. اقرا وقتب, کیونکہ اقرا کے بعد جو ہے نا کوئی لفظ نہیں ہے جو کہ الف لام کے ساتھ استعمال ہو. یہاں پر ہم پڑھ رہے تھے اقرا الدرس, یہاں پر ہم پڑھ رہے تھے اقرا الدرس. اقرا تھا اصل میں, اس کو زیر کیوں لگایا ہم نے؟ یہ الف لام کے ساتھ ایک لفظ آیا ہوا ہے یہاں پر. جب الف لام کے ساتھ آ رہا ہے تو دونوں کو ملا دیں گے ہم, اقرا الدرس, اس لیے زیر لگا رہے ہیں. یہاں پر کوئی لفظ نہیں ہے, اقرا کے بعد میں کوئی الف لام والا الف لام کے ساتھ کوئی لفظ نہیں ہے, لہذا اس کو ویسا ہی پڑھیں گے اقرا 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 ہے نا. اور اب اس کو پڑھیں گے وقتب, اس کو پڑھیں گے ہم, اس کو پڑھیں گے ہم وقتب وقتب. وہ اکتب نہیں پڑھیں گے اب ہم اس کو. سیکنڈ میں ارتقاء ساکنین ہو رہا ہے. ہاں جی سیکنڈ والے میں ارتقاء ساکنین ہو رہا ہے. ہاں اس کو اقرا ہی پڑھیں گے, اس کو اقرا ہی پڑھیں گے. کب زیر میں یہ سکون جو ہے نا زیر میں کب بدلیں گے؟ تب اس کے بعد جو ہے نا کوئی لفظ آتا ہے الف لام کے ساتھ میں, جیسے کہیں گے کہ یہاں پر پڑھا ہم نے الدرسا, الف لام کے ساتھ لفظ موجود ہے اقرا کے بعد. تو اب اقرا اور الدرس دونوں کو ملائیں گے تو پھر جو ہے نا ہمیں ضرورت پڑے گی اس سکون کو کسرہ میں بدلنے کی. تو اقرا الدرسا اقرا الدرسا, تو الف اس سکون کو کسرہ میں کیوں بدلنا پڑ رہا ہے؟ ہم اس کے بعد جو چونکہ الف لام والا لفظ موجود ہے, الف لام کے ساتھ لفظ موجود ہے, تو دونوں کو جوائن کر کے پڑھنا پڑ رہا ہے, اس لیے ہمیں جو ہے نا زیر لگانی پڑ رہی ہے. ادروائز جو ہے نا ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں زیر لگانے کی, زیر میں بدلنے کی, سکون کو کسرہ میں بدلنا نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے نا, تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے, کلیئر ہے؟ اقرا وقتب, ہم کیا پڑھیں گے اس کو؟ ہم اقرا وقتب. ہاں یہ دھیرے دھیرے جو ہے نا, اسی لیے میں جو ہے نا ریڈنگ کی پریکٹس جو ہے نا میں الگ سے ویڈیوز ڈال رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. یہ ریڈنگ کیسے کرے, عربک لینگویج کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو کیسے پڑھے, مضامین کو کیسے پڑھے, آرٹیکلس کو کیسے پڑھے, ان کی ریڈنگ کیسے کرے, ان کی انڈرسٹینڈنگ کیسی ہو. تو آپ لوگوں کے لیے ایڈیشنل جو ہے نا وہ سپورٹ اور ہیلپ ہے آپ کے لیے. اور آپ لوگوں کے علاوہ دنیا بھر میں لوگ جو ہے نا پڑھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں عربی, جو کہ ہمارے کلاس میں موجود نہیں ہے, لیکن وہ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں الحمدللہ. کامنٹ سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہو, دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. تو سب کے لیے مفید ہے انشاءاللہ, آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. میں تو سب
मैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है ना आप लोगों की जो है ना अरबी मजबूत हो जाए इंशाल्लाह। आप लोगों को फायदा लग रहा है उन वीडियो से? आप लोग जी देखते हैं सर। कभी रीडिंग वाली जी जो मैं सर, प्रैक्टिस डालता हूँ? हाँ जी। सर देखिए देखते हैं। हाँ, रीडिंग वाली जो रीडिंग की प्रैक्टिस की वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों की वजह से डाल रहा हूँ मैं असल में, ताकि आप लोगों को जो है ना ज्यादा से ज्यादा बातें समझ में आए इंशाल्लाह। धीरे धीरे समझ में आएगी इंशाल्लाह। प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस से आता है ना? तो जो जी है ना सर। प्रैक्टिस जब जितनी होगी तो इंशाल्लाह खैर होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा ज्यादा जो है ना बोझ नहीं लीजिए, ज्यादा दिमाग पर लोड मत लीजिए, आपके कब आएगा और कब नहीं आएगा, और नहीं आ रहा तो फिर क्या, तो आप जो है ना लॉग आउट मत हो जाइए, आप जो है ना क्लास से बाहर नहीं हो जाइएगा। आप लोग नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आएगा इंशाल्लाह। आप लगे रहिए इंशाल्लाह। ठीक है ना? नंबर 4 का जुमला पढ़ के दिखाइए आप लोग। उखरुज वल अब। उखरुज हाँ, वल्अब। अब इसको पढ़ेंगे उखरुज वलअब। अब उखरुज यहाँ पर आवाज जो है ना हमज़तुल वस्ल की आवाज ऊ निकाल रहे हैं हम बराबर ऊ, क्योंकि इसके पहले कोई हर्फ लफ्ज नहीं है, तो हम इसकी आवाज को बरकरार रखे हुए, इसकी आवाज बरकरार है। उखरुज, ऊ की आवाज बरकरार है, हमज़तुल वस्ल की आवाज बरकरार है, मौजूद है, क्योंकि इसके पहले कोई लफ्ज या हर्फ मौजूद नहीं है। लेकिन इलअब, लाइब यलअबु इलअब, लाइब यलअबु इलअब, है ना? तो इन अब जो है ना, लेकिन इसके पहले वाव मौजूद है यहाँ पर, इसके पहले वाव आ गई, तो यहाँ पर वो इल अब नहीं पढ़ेंगे, वल अब जो है ना हमज़तुल वस्ल की आवाज को गायब करके पढ़ेंगे। लिखने में मौजूद है, पढ़ने में मौजूद नहीं है। वल अब, लेकिन लिखने में लगाना होगा आपको। जब आप लिखे तो हमज़तुल वस्ल खड़ी लकीर लगाए वहां पर, लिखने में जो है ना गायब नहीं करने हैं आपने उसको, पढ़ने में गायब कर देंगे उसको हम। वल अब उखरुज वल अब, क्या पढ़ेंगे हम इसको? हाँ जी, उखरुज वल्अब। उखरुज वल्अब। तो खुरुज वाला। अब नंबर 5 का जुमला पढ़ के बताइए आप लोग मुझे। इज़हबिल आना वरजिई बाद सुलूसी साअतिन। हाँ जी, इज़हब, जी पढ़ के बताइए, और कोई पढ़ के बताए मुझे नंबर 5 का जुमला। इज़हबिल आना वरजि बाद सुलूसी साअतिन। हाँ जी, इज़हबिल आना, इज़हबिल आना। अब ये देखिएगा, इज़हब फेले अम्र है, इज़हब फेले अम्र है, इज़हब, लेकिन इसके बाद जो है ना एक लफ्ज आ रहा है जो कि अलिफ लाम के साथ में लगा हुआ है, अलिफ लाम के साथ है। तो जब भी फेले अम्र के बाद में ऐसा लफ्ज आए जो अलिफ लाम से शुरू हो रहा हो, जैसे अल आना, अब अल से शुरू हो रहा है ये, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो इस सुकून को कसरा में बदल देंगे, इस सुकून को जेर में बदल देंगे। अब आप इज़हब से कहेंगे इज़हबिल आना। कैसा पढ़ेंगे हम इसको? कैसा पढ़ेंगे हम इसको? इज़हबिल आना। इज़हबिल आना। आना जी, इज़हबिल आना पढ़ेंगे इसको। हाँ, इज़हबिल आना। लेकिन अगर इज़हब के बाद अगर ये लफ्ज ना होता तो हम इज़हब ही कहते उसको, इज़हब ही, या इसके बाद कोई ऐसा लफ्ज होता जो कि बगैर अलिफ लाम के होता तो हम इसको इज़हब ही कहते फिर, है ना? लेकिन अलिफ लाम के साथ एक लफ्ज मौजूद है इज़हब के बाद। फेले अम्र के बाद जब भी कोई लफ्ज मौजूद हो अलिफ लाम के साथ, तो फेले अम्र के आखिर में जो सुकून है, इज़हब के आखिर में जो सुकून है, उसको हम जो है ना जेर से बदल कर पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं इज़हबिल आना, अभी चले जाओ, अब चले जाओ, इज़हबिल आना। अच्छा, वर्ज, अब देखिएगा, रजा यरजिउ, फेले अम्र रजा यरजिउ, इरजा फेले अम्र इरजा, जी इरजा। तो इरजा से पहले वाव मौजूद है, तो अब वह इरजा नहीं पढ़ेंगे हम इसको। क्या पढ़ना चाहिए हमें? वर्ज। तो इज़हबिल आन वर्ज, कैसे पढ़ेंगे हम इसको? कैसे पढ़ेंगे हम इसको? इज़हबिल आन वर्ज बाद सुलुस साअतिन। सुलुस साअ यानी 1 घंटे के 3 टुकड़े करें तो 20 मिनट हो जाते हैं। हाँ जी, 1 घंटे के 3 टुकड़े करेंगे हम, 60 मिनट के 3 टुकड़े करेंगे तो 20-20 मिनट के 3 टुकड़े बन जाएंगे कि नहीं हमारे पास? तो 16 साअ का मतलब होता है 20 मिनट। 16 साअ का मतलब क्या होता है? 16 साअ का मतलब 20 मिनट। तो कह रहे हैं कि इज़हबिल आन वर्ज बाद सुलुस साअतिन, चले जाओ और वापस आ जाओ 20 मिनट के बाद। वर्ज बाद सुलुस साअतिन, और वापस आ जाओ 20 मिनट के बाद। तो सुलुस साअ यानी 20 मिनट, और 15 मिनट को कहेंगे रुबु साअ। एक घंटे के 4 टुकड़े करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 15-15 मिनट, है ना? तो हम उसको रुब कहते हैं, है ना? 4 टुकड़े कर रहे हैं कि नहीं हम? 1 घंटे के 4 टुकड़े कर रहे हैं कि नहीं हम?
15 15 15 15 4 टुकड़े कर रहे हैं हम उसके, तो 4 टुकड़े कर रहे हैं, लिहाजा 15 मिनट को रुबा सा, 15 मिनट को क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम, ربع ساعة जी। तो 15 मिनट को अरबी, जी, तो आधे घंटे को कहेंगे निस्फ सा। हाँ जी, 1 घंटे को कहेंगे सातुन, 1 घंटे को क्या कहेंगे हम, ساعة सातुन। आधे घंटे को क्या कहेंगे हम, نصف ساعة सातिन, निस्फ सातिन। और जो है ना, पौन घंटा जो होता है, पौन है ना, तो जो 15 मिनट वाला जो सेगमेंट है, 15 मिनट के जो टुकड़े है उसको रुबा सा, उसको जो है ना रुबा सा कहेंगे। 15 मिनट के जो ब्रेक है उसको रुबा सा। हाँ जी, 15 मिनट के जो ब्रेक है उसको क्या कहेंगे हम, ربع ساعة रुबा सा, जी। और 20 मिनट के जो टुकड़े ब्रेक है उसको सुलुस सा, सुलुस सा। तीन टुकड़े कर रहे हैं हम घंटे के, तो घंटे के 3 टुकड़े कर रहे हैं। तो याद रखिएगा इसको, जो है ना पौन और सवा जो बोलते हैं ना उर्दू में हम, पौने 5 सवा 5, तो ये जो ना पौने और सवा 15 वाले टुकड़े, तो रुब रुब इल्ला रुब बरुब ऐसा रहता वो। ठीक है, चलिएगा। तो नंबर 6 का जुमला पढ़िएगा। घंटा को सवा घंटा क्लियर जरा कर। हाँ, पौन घंटा, जैसे कि 4:45, तो इल्ला खम्स है ना, खम्स इल्ला रुब, खम्स इल्ला रुब। 4:45 को क्या कहेंगे हम, 4:45 को क्या कहेंगे हम, खम्सा इल्ला रुब। हाँ, और 4:15 को कहेंगे खम्सा व रुब। 4:15 को क्या कहेंगे हम, 4:15 को क्या कहेंगे, खम्सा व रुब, खम्सा व रुब। और 4:45 को कहेंगे खम्सा इल्ला रुब। इल्ला का मतलब कम कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इल्ला करके, इल्ला कहकर हम माइनस कर रहे हैं उसको, इल्ला रुब यानी माइनस। ठीक है ना, चलिए नंबर 6 का जुमला पढ़िएगा। मिज़िया कहते हैं रेडियो को, मिज़िया कहते हैं रेडियो को, मिज़िया कहते हैं रेडियो को। हाँ जी, मिज़िया कहते हैं रेडियो को, है ना। और इज़ा हमने पढ़ा हुआ, इज़ा यानी रेडियो स्टेशन, इज़ा यानी रेडियो स्टेशन, तो मिज़िया यानी रेडियो। तो इफ्तहिल मिज़िया वस्मइल अखबारा, कैसे पढ़ेंगे हम इसको, इफ्ताह और अल मिज़िया। इफ्ताह, देखिए फेले अमर इफ्ताह, और इफ्ताह के बाद जो है ना, फेले अमर के बाद जो है ना ये लफ्ज आ रहा जो वो अलिफ लाम के साथ में है, अल मिज़िया। तो दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इफ्ताह के आखिर में जी हाँ के ऊपर जो सुकून है उसको ज़ेर में बदल देंगे हम पढ़ेंगे इफ्तहिल मिज़िया, इफ्तहिल मिज़िया। चूंकि अलिफ लाम के साथ लफ्ज शुरू है उसके बाद, तो हम पढ़ेंगे इफ्तहिल मिज़िया। और फिर वस्मइल अखबार, समय इस्मो इस्मा, समय इस्मो इस्मा। अब इस्मा के बाद जो लफ्ज आ रहा है वो किससे शुरू हो रहा है, अलिफ लाम अलिफ लाम से शुरू हो रहा है, अलिफ लाम से शुरू हो रहा है। तो लिहाजा इस्मा ऐन के ऊपर जो सुकून है उसको हम बदल देंगे किसमें, ज़ेर में। तो हम पढ़ेंगे वस्मइल अखबारा। क्या पढ़ेंगे हम इसको, वस्मइल अखबारा, अखबारा, वस्मइल अखबारा, वस्मइल अखबारा। और ये देखिएगा इस्मा था, समय इस्मो से पहले अमर, बोलिएगा इस्मा, लेकिन पहले वाव आ गया, इससे पहले जो है ना वाव है। तो अब हम वो इस्मा नहीं पढ़ेंगे, अब हम वो इस्मा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, वस्मा जी। तो ये जो है ना, जब आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान के अंदर भी आपका जो है ना ये आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। कुरान के अंदर भी आप कुरान के अंदर जो है ना गलत नहीं पढ़ेंगे फिर कभी भी इंशाल्लाह। नंबर 7 का जुमला पढ़िएगा। خذ هذه الحقيبة وافتحها जी, खुद हाज़िहिल हक़ीबता वफ्तहा, वफ्तहा, व इफ्ताहा नहीं पढ़ेंगे अब हम, व इफ्ताहा नहीं पढ़ेंगे, वफ्ताहा, वफ्ता हमज़तुल वस्ल की आवाज को गायब कर देंगे। खुद हाज़िहिल हक़ीबता वफ्तहा, मतलब क्या है इस जुमले का, उठाओ इस बैग को, ये बैग लो और इसे खोलो। ये बैग लो और इसे खोलो, ये बैग लो। तो अखज़ा याखुज़ु की मैंने रीडिंग वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने अखज़ा याखुज़ु की मीनिंग बताई हुई है। अखज़ा याखुज़ु की कितनी मीनिंग बताई मैंने, बताई है, किसी को याद है अखज़ा याखुज़ु के क्या क्या माना आते हैं अरबिक में, लेना पकड़ना, ले लेना। जी। अखज़ा याखुज़ु का मतलब होता है पकड़ना,
अखज़ा याखुज़ु का मतलब होता है किसी चीज को होल्ड करना, अखज़ा याखुज़ु का मतलब होता है किसी चीज को जो है ना ले जाना कहीं पर, ठीक है ना। तो अखज़ा याखुज़ु लेना पकड़ना और लेकर जाना कहीं, ये सारे माना होते हैं अरबिक में। तो खुद हादिहिल हक़ीबत वफ्ताहा, तो हम यहाँ तर्जुमा करेंगे कि ये बैग लो। खुद का तर्जुमा क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम यहाँ पर, देख लो बैग लो, ये और बैग खोलो। लो, ये बैग लो और ये इसे बैग खोलो। अच्छा देखिएगा, ये देखिएगा हमारा जो है ना ये डिस्टर्ब हो गया था ये। अच्छा तो अब इसको पढ़िएगा, नंबर 8 का जुमला पढ़िए। इज़हब इलल मुदीरी वस्अलहु। हाँ जी, इज़हब इलल मुदीर वस्अलहु, मतलब इस जुमले का मतलब क्या हो रहा है, इज़हब इलल मुदीर वस्अलहु, मैनेजर के तो पास इनके जाओ और उससे जाओ, पूछो। उससे पूछो। हाँ साला यसअलु किस माना में आता है, साला यसअलु पूछना है तो लो। पूछना। पूछना, साला यसअलु फेले अम्र क्या आता है, साला यसअलु इस अल अल, इस अल है ना, और वाव आ गया पहले तो वस अल, वस अल वसअल। कुरान में, जो कुरान में है ये ना वस अलिल करियत है ना। नंबर 9 का जुमला पढ़िएगा। खुदिल खुदिल कूबा कूबा वग़सिलहु। खुदिल कुबा वगसिलहु, वग़सिलहु। हाँ खुदिल कुबा, खुद अखज़ा या खुद से खुद, अलकूब कहते प्याला को, अलकूब कहते प्याले को, प्याला। खुदिल कुबा वगसिलहु क्या मतलब है, खुदिल कुबा वगसिलहु, प्याला पकड़ो और प्याला दो डालो। प्याला पकड़ो और ये दो। और ये उसे ये धो। प्याला, ये प्याला, प्याला लो और उसे धो, प्याली लो और उसे धो, है ना। और अखज़ा याखुज़ु को मतलब ले जाना भी होता है, तो हम यूं भी कह सकते हैं प्याली ले जाओ और इसे धो लो, है ना। तो ले जाओ भी कह सकते हैं और लो भी कह सकते हैं और पकड़ो भी कह सकते हैं, सारा कुछ होता है, टेक एंड होल्ड सारे माने में आता है खुद। नंबर 10 का जुमला, क़ाल अल्लाहु तआला लियहया अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में यहया अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया था कि या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा, या यहया ऐ यहया खुद, अखज़ा याखुज़ु फ़िल अम्र खुद, खुदिल किताबा। देखिएगा फ़िल अम्र खुद है कि नहीं, फ़िल अम्र खुद है, और उस खुद के बाद जो है ना जो लफ्ज़ आ रहा है वालिफ लाम के साथ है, अल के साथ में है, तो लिहाजा उसको जो है ना हम खुद को हम पढ़ेंगे खुदिल किताबा, खुदिल खुद खुदिल अल किताबा नहीं पढ़ेंगे हम। हाँ जी, खुद अल किताबा नहीं पढ़ेंगे, खुद अल किताबा नहीं, खुदिल किताब बिक़ुव्वतिन, ऐसे ही पढ़ेंगे हम इसको, खुदिल किताब। खुदिल किताबा। हाँ या नहीं लगाएंगे हम, जेर लगा देंगे, तो असल तो है वो खुद, या यहया खुद अल किताबा, या यहया खुद अल किताबा, लेकिन खुद जो फेले अम्र है उसको अल किताब के साथ मिलाकर पढ़ना है हमें, तो खुद अल किताबा नहीं पढ़ना है हमें, हम पढ़ेंगे खुदिल किताब बिक़ुव्वा, या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वतिन। तो ये बात समझ में आ गई। फेले अम्र के बाद जब भी कोई लफ्ज अलिफ लाम के साथ आए तो फेले अम्र के आखिर में जो सुकून है उसको कसरा में बदल देते हम। हाँ जी, मैंने जो बात कही वो आप लोगों ने सुनी नहीं सुनी, जी सर। जी सर। क्या क्या बात कही मैंने अभी आप लोगों के सामने, क्या बात कही मैंने, स्कूल को आपने ये कसरा में कहा कि पहले पहले अम्र में जो है, जी पहले अम्र के बाद अगर लफ्ज पहले अम्र, तो उसमें किसने लगाकर जी फेले आगे अम्र, जी फेले अम्र के बाद अगर कोई लफ्ज अलिफ लाम के साथ आता है, फेले अम्र की दोबारा सुनिएगा, फेले अम्र के बाद अगर कोई लफ्ज अलिफ लाम के साथ आता है तो फेले अम्र के आखिर में जो सुकून है उसको जेर में बदल के पढ़ते हैं, तो खुद से बढ़ जाएगा खुदिल, खुदी, खुद से खुदिल किताबा, या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वतिन। याद है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई जी बात। सर। नंबर 11, वक़ाल तआला ले आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन आदम अलैहिस्सलाम फरमाया था वक़ुलना, कुरान में ये आयत, वक़ुलना या आदम उस्कुन, वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता। अब ये देखिएगा फेले अम्र कहाँ है यहाँ पर, फेले अम्र कहाँ है यहाँ पर, उसकुन सकना यस्कुन, उस्कुन। हाँ इस आयत में फेले अम्र है उस्कुन, सकना यस्कुनु, सकना यस्कुनु, नसरा यंसुरु, सकना यस्कुनु, नसरा यंसुरु, फेले अम्र, सकना यस्कुनु फेले अम्र, उस्कुन उस्कुन उस्कुन, 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 जी उस्कुन। अब उस्कुन के पहले जो है ना एक लफ्ज आ गया या आदमु, अब या आदमु और उस्कुन फेले अम्र दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। अब हम तो यूं नहीं पढ़ सकते या आदमु उस्कुन वकुलना या आदमु उस्कुन, ऐसा नहीं,
वकुल्ना या आदम آدم उस्कुन, اسكن वकुल्ना या आदम उस्कुन, या वो क्या ना, हाँ अंत वज़ौजुकल जन्नत, है आदम तुम और तुम्हारी अहलिया बीवी जन्नत में रहो। कुल्ला वकुल्ला या आदम, और हमने कहा है आदम उस्कुन। अब लेकिन हम या आदम उस्कुन नहीं पढ़ते हम कुरान में, जब हम पढ़ते तो वो कुल्ला या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नत वकुला मिनहा रगदन, है ना। तो देखिएगा उस्कुन, तो ये हमदतुल वस्ल है जिसको हम, जिसके आवाज को गायब करके पढ़ रहे हैं। फेल अम्र के शुरू में जो लंबी लकीर है, वो खड़ी लकीर है जो, वो हमदतुल वस्ल है। और उसका कायदा ये बताया हमने कि इसके पहले अगर कोई लफ्ज आ जाए तो उसकी आवाज को गायब कर देते हैं हम। लिखने में मौजूद होती है वो हमदतुल वस्ल, लेकिन पढ़ने में गायब हो जाती है आवाज। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो जो है ना, 5-10 मिनट ले लेते हैं आपके, या कैसे क्या? जी जी अच्छा। जी सर। चलिएगा, हाँ नंबर 7 का जुमला देखिएगा, लास्ट वीक हमने पढ़ी नहीं थी, अब हमारी क्लास नहीं हुई थी, तो देखिएगा या हामिदु ज़हब, या इखवानु ज़हबू, या आमिनतु ज़हबी, या अखवातु ज़हबना, ऐसा पढ़ेंगे हम इसको। हाँ जी, पूरे लाइन को ऐसा पढ़ेंगे हम। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए गौर से, ताकि आपको आगे पढ़ने में सहूलत हो। या हामिदु ज़हब, या हामिदु ज़हब, ऐसा नहीं पढ़ेंगे या हामिदु इज़हब, ऐसा नहीं। या हामिदु ज़हब, या इखवानु ज़हबू, या आमिनतु ज़हबी, या आमिनतु इज़हबी नहीं पढ़ेंगे, या आमिनतु ज़हबी, या अखवातु ज़हबना। तो फेले अम्र जितने भी मौजूद है, जहां पर भी आपको फेले अम्र नजर आ रहा है, फेले अम्र शुरू हो ही रहा है हमदतुल वस्ल से, और हमदतुल वस्ल की आवाज को कायम कर रहे हैं हम। चलिएगा नंबर एक का जुमला पढ़िएगा जल्दी जल्दी। يا يا أيها أيها الطلاب الطلاب فصل ادخلوا الفصل واجلسوا الدرس واجلسوا واكتبوا الدرس जी पढ़िए। يا أيها الطلاب ادخلوا الفصل असल जी يا أيها الطلاب واجلسوا ادخلوا واكتبوا الفصل الدرس हाँ जी واجلسوا واكتبوا الدرس जी, या अय्युहत्तुल्लाबु उदखुलुल फस्ल वजलिसु वक्तुबुद्दरसा। देखिएगा जो है ना, हमारी जो है ना खुद ब खुद आपकी जुबान पड़ेगी बाद में इंशाल्लाह। बाद में जो है ना खुद ब खुद आपकी जुबान आदी हो जाएगी इस बात की कि हम इसको कैसा पढ़े। तो या अय्युहत्तुल्लाबु, या अय्युहत्तुल्लाबु उदखुलु, या अय्युहत्तुल्लाबु उदखुलुल फस्ल। देखिएगा सब जो है ना रूल वही है, हमदतुल वस्ल के रूल है सारे यहाँ पर कुरान के अंदर है। या अय्यतुहन नमलु दुखुलु, क्या ना, कुरान के अंदर कौन सी आयत है? या अय्युहन नमलु दुखुलु मसाकिन। हाँ जी, क्या आयत है वो? हाँ जी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना। या अय्यतुहन नफ्स जी। तो या अय्युहत्तुल्लाबु उदखुलुल फस्ल वजलिसु वक्तुबुद्दरसा। नंबर 2 को पढ़िएगा, नंबर 2 को पढ़िएगा। उखरुजी या बिन्तुल उखरुजी या बिन्तु या वलअबी हाँ माँ उख्तिका माँ उख्तिकी उखरुजी या बिन्तु उख्तिकी जी, उखरुजी या बिन्तु, उखरुजी या बिन्तु वलअबी। अब यहाँ पर वलअबी वाव आगे है ना, इलाबी से वलअबी, इलाबी से वलअबी। या उखरुजी या बिन्तु वलअबी माँ उख्तिकी, है ना, लड़की से बात हो रही थी की, माँ उख्तिकी। नंबर जो ना जुमला समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? उखरुजी या बिन्तु वलअबी माँ उख्तिकी क्या जुमला है, क्या मतलब है? ए लड़की निकलो हाँ और जी, अभी और अपनी हाँ जी, बहन के साथ खेलो। अपने वेरी बहन गुड। के साथ ये खेलो। ऐ बच्ची, ऐ लड़की, उखरुजी या बिन्तु, बाहर ऐ जाओ और लड़की अपनी बहन के बाहर साथ जाओ खेलो। और अपनी बहन के साथ खेलो, बाहर जाओ और अपनी बहन के साथ खेलो, माशाअल्लाह। नंबर 3 का जुमला पढ़िएगा। कुलू वशरबू कुलू वशरबू, खाओ पियो, कुलू वशरबू, खाओ पियो, खाओ और पियो, खाओ और पियो। नंबर 4 पढ़िए। اشربنا القهوة يا इशरबना صديقاتي हाँ जी, इशरबनल कहवता हाँ या जी, अखवाती या अखवाती जी, इशरबनल कहवता, इशरबना, शरीब यशरबू से इशरब, इशरबू, इशरबी, इशरबना,
इशरब, इशरबू, इशरबी, इशरबना, चारों शक्लें याद रखिएगा, दो मुदक्कर की, दो मुअन्नस की, वाहिद जमा, वाहिद जमा। इशरब, इशरबू, इशरबी, इशरबना बोलकर दिखाइए मुझे, कौन दिखाएगा मुझे बोलकर? इशरब इशरबू इशरबू इशरबना। जी, इशरब, इशरबू, इशरबी और इशरबना। आप लोग सिस्टर में से कौन बोलकर दिखाएगा मुझे ऐसा चारों इशरब, शक्लें? इशरबू, इशरबी, इशरबना। हाँ जी, ये चारों शक्लें याद रखिएगा। अच्छा, नंबर 5 का जुमला जो है ना, ये मतलब तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। नंबर 5 का जुमला पढ़िएगा। तालैया ताला या आमिनतु अमनतु वफ्तहिन वफ्तहिन नवाफिद। नवाफिदा। हाँ जी, ताला ही पढ़ेंगे हम। मर्द से कहेंगे ताला, मर्द से कहेंगे ताला, किसी मर्द से कहेंगे कि कम हियर, आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, तो मर्द से कहेंगे ताला, ताला, लाम के ऊपर जबर। लेकिन औरत से कहेंगे तालई, 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 तालई या आमिनतु, ऐ आमना इधर आओ। वफ्तहिन नवाफिदा, वफ्तहिन नवाफिदा। अब देखिएगा, इफ्तही क्या था ये? इफ्तही, लेकिन इफ्तही। हाँ, लेकिन वाव पहले आ गए तो वो इफ्तही नहीं पढ़ेंगे। अब हम कैसे पढ़ेंगे? वफ्तही। क्या पढ़ेंगे वफ्तहिन हम? नवाफिदा। वफ्तहिन नवाफिदा, तालैया आमिनतु, तालैया आमिनतु, वफ्तहिन नवाफिदा, वफ्तहिन नवाफिदा। तो ताल मर्द से कहेंगे ताला, मर्द से कहेंगे ताला, औरत से कहेंगे तालई, तालई, तालई। याद रखिएगा, याद रखिएगा। नंबर 6 को पढ़िए। इग्सिलू वजूहकुम व अयदीकुम। इग्सिलू वजूहकुम व अयदीकुम, इग्सिलू वजूहकुम व अयदीकुम। चलिए, इसमें कोई जो है ना अलिफ लाम वाला कोई लफ्ज नहीं है। नंबर 7 को पढ़िएगा। अअबुदुल्लाह लहू। उअबुदना, उअबुदना, उअबुदनल्लाह, अअबुदुल्लाह। उअबुदना लहू। ये जमा मुअन्नस है, ये जमा मुअन्नस है। नंबर 8 का जुमला पढ़िएगा। इल्अबू बादद दरसा। इल्अबू बादद दरसी, इल्अबू बादद दरसी। देखिएगा, बादद दरसी, बादद दरसी, तो अदर्स के अंदर जो खड़ी लकीर है वो हमदतुल वस्ल है, लिहाजा उसकी आवाज गायब कर रहे हैं हम, बादद दरसी। तो याद रखिएगा, जहां पर भी जो भी अल्फाज अल 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 के साथ इस्तेमाल होते हैं, वो जो खड़ी लकीर है अल में, वो हमदतुल वस्ल है, उसकी आवाज को गायब करना पड़ता है हमें, उसके पहले कोई लफ्ज आ जाए तो बादद दरसी, बाद अदर से नहीं पढ़ेंगे, बाद अदर से नहीं, बाद अदर से। नंबर 9 को पढ़िएगा। खुज़ी किताबकी या सुआदु। सुआदु। खुदी किताबक या सुआदु, खुदी किताबक या सुआदु। क्या कहा इन्होंने? ऐ सुआद, अपनी किताब लो। सुआद, अपनी किताब ले। सुआद, अपनी किताब लो। नंबर 10 का जुमला है कि क़ाल अल्लाह तआला फी सूरतिल बक़रा, अल्लाह ताला ने सूरतुल बक़रा फरमाए कि या अय्युहन नास उअबुदू, अबदा यअबुदू। फ़ेल अम्र बोलिएगा, अबदा यअबुदू, फ़ेल अम्र। अबदा यअबुदू। उअबुद जमा उअबुदू। हाँ, चारों, अबदा यअबुदू, फ़ेल अम्र उअबुद, चारों शक्लें बोलिए उअबुद से। उबुद उबुदी उबुदना। उअबुद, उअबुदू, उअबुदी, उअबुदना, उअबुद, उअबुदी, उअबुद, उअबुदू और उअबुदी और उअबुदना, चारों शक्लें याद रखिएगा। तो अब ये उअबुदू जमा मुज़क्कर, उअबुदू जमा मुज़क्कर, लेकिन उअबुदू से पहले अन्नास आ गया हुआ है, तो अन्नास को उअबुदू के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। हम कहेंगे या अय्युहन्नास उअबुदू, या अय्युहन्नास हमज़तुल वस्ल की आवाज को, हमज़तुल वस्ल की आवाज को गायब कर देंगे हम। या अय्युहन्नासु उअबुदू नहीं पढ़ेंगे हम, या अय्युहन्नासु उअबुदू। तो जरा इस पर लिखिए मत, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ये सब जो लिख रहे हैं ना। कोई सिस्टर शहनाज सर, जो ये है। जो हर्फ निदा होता है, हाँ जी, क्या इस पर कभी फता भी आ जाता है? हाँ जैसे जी, ये या सुआदु है, एक जम्मा रह हाँ, जाता है, एराब हल्का हाँ। हो जाता है, तो क्या कभी फता भी आ जाता है यहाँ पर? फतह उस वक्त आएगा मुनादा पर। मैंने अभी ये रीडिंग वाली जो वीडियो डाली है उसके अंदर रूल मैंने समझाया हुआ है, और इसके पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि अच्छा, ये देखिएगा, या जो है ना हर्फ निदा है, या हर्फ निदा है, ठीक है, और इसके बाद जो लफ्ज आ रहा है इसको क्या कह रहे हैं हम? मुनादा। मुनादा। मुनादा, मुनादा। ओके, ओके। मुनादा हमेशा, रूल क्या पढ़ा आपने मुनादा के बारे में? मुनादा हमेशा क्या होता है? पेश रह जाता है। नहीं, मुनादा हमेशा मरफू होता है, मंसूब होता है? मरफू होता है। मरफू होता है, ये मरफू होता है, मरफू होता है। हमने ये रूल पढ़ा हुआ है। लेकिन हमने एक रूल और भी पढ़ा हुआ है कि मुनादा जब मुजाफ बनकर आता है तो मंसूब हो जाता है। मुनादा हमेशा मरफू होता है, लेकिन अगर वो मुजाफ हो जाए, लेकिन अगर वो मुजाफ हो जाए
तो फिर मरफू के बजाय मंसूब पढ़ते हैं हम, जैसे कि अब्दुर रहमान। अब हम सिर्फ कहेंगे कि या अब्दु, लेकिन अब्द मुजाफ है और रहमान मुजाफ इलैह है, तो अब या लगा देंगे तो या अब्दुर रहमान नहीं पढ़ेंगे, या अब्दुर रहमान पढ़ेंगे, क्योंकि अब्द जो है मुजाफ है, अब्द मुजाफ है और रहमान मुजाफ इलैह है। तो जब मुनादा मुजाफ, अब या अब्दुर रहमान, तो या हर्फ निदा अब्द मुजाफ अब्द मुनादा, तो मुनादा जब मुजाफ बनता है तो मंसूब हो जाता है वो मरफू के बजाय। तो या अब्दुर रहमान नहीं बल्कि या अब्दुर रहमान क्या पढ़ेंगे हम, या हाँ। तो अब इसको तो यहाँ पर या सुआदो ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आगे को ये मुदाफ की शक्ल में नहीं है, ये है ना, ये तो बिल्कुल प्योर है ये मुनादा। अगर मुनादा अगर मुदाफ बन जाता है तो फिर मंसूब हो जाता है वो। क्या कहा मैंने, मुनादा अगर मुदाफ बन जाता है तो वो मंसूब हो जाता है। मुनादा अगर मुदाफ बन जाए तो मंसूब पढ़ते हैं, अदरवाइज मरफू रहता है हमेशा वो। ये एक्सेप्शन है उसके अंदर, या अब्दुर्रहमान या अबा बकर। अच्छा, तो या अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये जो है ना बात समझ में आ गई आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। या आपने पढ़ाए हैं अच्छे से। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, क्लास में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। हाँ ये रोल हमने पढ़ाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। एक जो है ना याद दहानी के तौर पर इंसान ज़हन से निकल जाती बातें, याद दहानी हो जाती है। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तो यहाँ फरमाए कि उअ्बुदू, लेकिन हम पढ़ेंगे या अय्युहन्नासु उअ्बुदू, सुअ्बुदू, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, अलग करके नहीं पढ़ेंगे। हमज़तुल वस्ल की आवाज को गायब कर देंगे। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 11 और आखिरी, यहीं पर हम क्लास को इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। नंबर 11 वक़ाल फी सूरत हज में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकऊ, रका यरकऊ, फतह यफ्तहू, फतह यफ्तहू फ़िल अम्र, रका यरकऊ तो फ़िल अम्र, इरका चारों शक्लें बोलिएगा। इरका, इरकाना। तो अब यहाँ पर इरकाऊ है, लेकिन इरकाऊ से पहले आमनु है, और आमनु और इरकाऊ को मिलाकर पढ़ना है, तो हम क्या पढ़ेंगे, आमनुरकाऊ पढ़ेंगे। आमनु इरकाऊ नहीं पढ़ेंगे, आमनु इरकाऊ नहीं, आमनुरकाऊ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकाऊ वस्जुदू वअबुदू, हाँ वफ़अलू खैरा। अभी देखिएगा हर जगह फ़ेले अम्र है। इरकऊ उसजुदू, सजद यसजुदू उसजुदू, लेकिन वाव पहले आ गया तो वस्जुदू। अबद याबुदू उबुदू, अबद याबुदू उबुदू, लेकिन वाव पहले आ गया तो वअबुदू। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम, ऐ ईमान वालों रुकू करो, सजदा करो, इबादत करो अपने रब की। वफ़अलुल खैरा, फ़अल यफ़अलु से इफ़अलू, और वाव पहले आ गया तो वफ़अलू, वफ़अलुल खैरा, वफ़अलुल खैरा। अब अल खैर के अंदर जो अल है वो हमज़तुल वस्ल है, तो हम पढ़ेंगे वफ़अलुल खैरा। तो बात समझ में आ गई हमज़तुल वस्ल की सारी? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। वफ़अलुल खैरा मतलब जी वफ़अलुल खैरा, और बहुत नेकी के काम करते रहो, नेकी के काम करो और नेकी के काम करते रहो, खैर के काम करो, खैर करो, है ना, नेकी का काम जो भी खैर बनता है हमसे। किसी को पानी पिला सकते पानी पिलाओ, ठीक है ना। किसी को अगर हम अपना अच्छे अल्फाज बोल सकते तो अच्छे अल्फाज बोल दे। अगर आपके पास पैसे नहीं और पानी नहीं है देने के लिए, तो कम से कम जुबान तो हमारी जो है ना फ्री में चल सकती है। तो जो है ना बजाय जो है ना किसी को ताना देने के और किसी को ये कहे कि यार तुम तो भिखारी हो, तुम तो फकीर हो, ये कहे कि भाई अल्लाह ताला आपके लिए खैर के दरवाजे खोलते हैं, अल्लाह ताला आपको भी गनी कर दे। तो हमेशा जो है ना पॉजिटिव रहना चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए, हमें अपने बारे में भी पॉजिटिव रहे, दूसरों के लिए भी पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा लोगों, है ना। तो लोगों को जो है ना अच्छे अल्फाज बोले, है ना। अल्लाह नबी के वो तबस्सुमु का फी वजहि अखीका सदका, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अच्छा जो है ना खुश मिजाजी के साथ मिले तो भी सदका है। तो अच्छी बात करनी चाहिए। वफ़अलुल खैरा, खैर के काम करो, भलाई के काम करो। चलिएगा, तो हम समझते हैं कि आज का मामला जो है ना, आज का जो लेसन है इतना मुश्किल तो नहीं रहा होगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? नहीं सर, इजी था। जी सर, बहुत इजी था। बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अरबी का सफर है बराबर चल रहा है, नॉर्मल है क्या, जो है ना कंट्रोल से बाहर है क्या अंडर कंट्रोल है?
आप लोग बताइए, सर अंडर कंट्रोल। अंडर कंट्रोल है सारी, कुछ ज्यादा कोई मुश्किल तो नहीं है, नहीं सर। ज्यादा कोई मुश्किल तो नहीं है सर सब? समझ में आ रहा है सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रेहान सिस्टर रेहान, आपने कहीं अरबी पढ़ी है कि हमारे पास जो पढ़ रही है आप अरबी? नहीं सर, यहीं पर स्टार्ट किया मैंने। हाँ, बुक 1 भी पढ़ी है आपने हमारे साथ? जी 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 सर। हाँ, तो आपके लिए क्या है, बुक 2 बराबर चल रही है क्या मुश्किल चल रही है? जी 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 सर, जरा मेरी अम्मी की तबीयत सही नहीं है ना, तो थोड़ा मिस हो जाती है। अल्लाह आसानियां फरमाए सबके लिए, अल्लाह ताला आसानियां फरमाए। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला आसानियां फरमाए, अल्लाह ताला खैर के दरवाजे खोले, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए जो है ना खैर फरमाए। अल्लाह ताला इंशाल्लाह अल्लाह ताला सभी के लिए खैर के दरवाजे खोल दे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है ना इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगले वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हयातुल्लाह।